Madhya Pradesh's tribal-dominated Alirajpur district, a group of 15 tribal women affiliated with the Hanuman self-help groups are successfully producing liquor using mahua in the first heritage liquor plant set up by the Madhya Pradesh government. Hello, I'm Iram Siddiqui and we are right now standing outside the Mahua Heritage Liquor Plant in Madhya Pradesh's Alirajpur district. Alirajpur houses one of the two plants that have been started by Madhya Pradesh government after it legalized the production of liquor from Mahua and termed it as heritage liquor. This plant has been up and running since January 2023, and right now the alcohol produced here is being supplied to Bhopal, Gwalior and Jabalpur. हम लोगों ने नकल में हाथ भट्टी से ही बनाते देखा था और महुए की शराब पहली बार बनाते हुए हम लोगों ने काम किया है और शुरुआत में लगा था कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर हमसे नहीं होगा, ऐसा शुरुआत में लगता था। फिर गवर्नमेंट ने सहायता की है हमारी मशीनरी में और सेटअप करने में। जो भी हमारे जहाँ से भी काम करना था वहाँ से सारा सहयोग गवर्नमेंट ने किया कि यहाँ से हमारे मशीनें आना है और यहाँ से हम लोगों को बॉटलिंग ख़रीदनी है। सारा सेटअप गवर्नमेंट ने करके दिया, तो वहाँ ज़्यादा सहयोग मिला हमें और अब तो करेंगे, ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। Soon after the state government amended its excise policy in November 2021, allowing only women-run self-help groups operating in 20 tribal districts to produce liquor using mahua, an old warehouse in Alirajpur's Kathiwada block was given a new lick of paint equipped with machineries, and the first heritage liquor plant was set up at the cost of Rs 1 crore. The plant is spread across 3 rooms and has a capacity to produce 200 liters of alcohol per day. MP government simultaneously roped in Aniruddha Mukherjee as a consultant who began working on the flavor of organic mahua-based liquor. After nearly a year of trial and error, Aniruddha settled on the earthy, flowery taste of the liquor that it now has. Then began the process of training the women. A group of 5 women were trained to produce liquor using dried mahua flowers on neatly calibrated machines at Pune's Vasantdada Sugar Institute. Hanuman SSG began production in January 2023 and until now has produced over 1300 liquor of alcohol. स्वयं सहायता समूह द्वारा महुआ खरीदा गया, उसको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर महुआ को हम लोग हर बैच में 65 केजी महुआ यूज़ करते हैं। 65 केजी महुआ को पहले वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में उसे भिगो के रखते हैं। भिगो के रखने के बाद पीसने लायक भिगो के रखते हैं आधे घंटे तक। भिगो के रखने के बाद महुआ पीसा जाता है। महुआ पीसने के बाद उसको कुकिंग करते हैं। महुआ कुकिंग करने के बाद में उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में फर्मेंटेशन करते हैं। उसमें 350 ग्राम एक फर्मेंटर में ईस्ट खमीर ऐड किया जाता है। उसको हर एक घंटे में मिक्स करते रहते हैं। 48 घंटे तक उसको फर्मेंटेशन के लिए लगाते हैं, 2 दिन तक। तीसरे दिन में उसे फिल्टर करते हैं। लिक्विड और सॉलिड दोनों अलग अलग करते हैं। लिक्विड को डिस्टिल करते हैं, सॉलिड को खाद फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं। और डिस्टिलेशन में 3 कट निकालते हैं। फर्स्ट कट 13 लीटर, सेकेंड कट 50 लीटर, थर्ड 5-5 लीटर करके अलग अलग निकाल लिया जाता है। उसमें जो पोर्टेबल का अल्कोहल परसेंट ज़्यादा रहता है 42 तक, 42-45 तक, तो उसको 38 करने के लिए टेल वाले को मिक्स करके 38 तक करते हैं। 38 होने के बाद में फर्स्ट कट डिस्ट्रॉय करते हैं जो पीने योग्य नहीं है। Once alcoholic production began in full swing at Alirajpur's Kathiwada district, sample bottles were sent across bars and restaurants operated by MP Tourism Department. Customers were given free sample and asked to fill up sample forms recording their feedback. The government also held tasting sessions with people from all walks of life, including youngsters and hoteliers. फर्मेंटेड टैंक कम है होने के कारण हम सप्ते में 2 बार अल्कोहल निकालते हैं
उसमें 60 लीटर एक डिस्टिलेशन में हमारा 60 लीटर निकलता है। तो 120 एक हफ्ते में 120 लीटर हमारा फाइनली बॉटलिंग के लिए निकलता है। और अदर टेल और फर्स्ट कट हम अलग करते हैं, उसको हम गिनती में वो नहीं लेते हैं, वो क्योंकि वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो हम उसको वापस हम डिस्टिलेशन के लिए उसको वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। The alcohol is sent for lab testing at the state-run laboratory in Indore, and once it's considered fit for sale, it is then bottled and packaged. The Hanuman SAG has so far produced over 1,300 liters of alcohol and earned a revenue of nearly 25 lakh. According to Jitendra Patidar, founder of Ambi Wines, where Mond is being sold across 25 shops in MP, the highest demand has come from people who have previously consumed locally made Mahua liquor. हमारे नोकल में जो हाथ भट्टी से कच्ची दारू जो बनाते हैं उसमें नोकल में मंद बोलते हैं, उसी का नाम मौंद रखा। हमारे अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैम संस्कृति जैन सीओ मैम थे, उनके सजेशन से रखा था ये नाम। Soon after the first batch of alcohol was successfully made in Alirajpur plant, as per the tribal custom, it was first offered to a local god, Pithora Dev, at his temple situated atop the Dongri Mata hill in Alirajpur. मैम ये नोकल हाथ भट्टी से अलग है, उसमें ज़्यादा दिनों तक सड़ाया जाता है और हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर पानी यूज़ करते हैं, पूरा मशीनों से काम किया ऑर्गेनिक तरीके से, और उसको साफ़ सुथरा करके महुआ को कुक करके जो भी बैक्टीरिया रहते हैं पानी में, हवा में, महुआ में, वो सारे कुक करके गर्म होने पे वो ख़त्म होते हैं, और उसमें जो महुआ में जो शुगर रहता है वो उसमें सेपरेट होता है। और जो हाथ भट्टी बनती है वो महुआ में डस्ट भी होता है, मिट्टी भी होती है, और वो एक ही मटके में फर्मेंटेशन के लिए करते हैं। तो वो महुए को सड़ाने के लिए 7 से 8 दिन के लिए रखते हैं, और उसमें पानी में हर चीज़ में बैक्टीरिया वगैरह रहता है, तो उसकी स्मेल थोड़ी रहती है। और हाथ भट्टी में मिला कुछ भी मिला के बनाते हैं। और हम लोग और जो यहाँ पर प्लांट में बना रहे हैं उसको साफ़ करके बनाते हैं, महुआ को साफ़ करते हैं, साफ़ पानी यूज़ करते हैं, आरओ का पानी यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा स्मेल नहीं है और स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है। और गांव वाले का जो हाथ भट्टी बनती है उसका स्ट्रेंथ कम है, उसका अल्कोहल परसेंट कम रहता है, 7 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 12% तक रहता है। Even as Mahua liquor is now being sold across MP, according to state's commercial tax department, these SAGs will have to work towards developing marketing linkages to increase sales. But increasing sale is not the only challenge for women of Hanuman SAG. स्टोरेज में कभी पानी वानी लगा, महुआ स्टोर करके रखा, उसमें पानी लगाया, ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा तो वो महुआ ख़राब होता है। हमारा कुछ महुआ ख़राब हुआ है। और मेंटेनेंस में मोटर या फिर बॉयलर या सोलर सिस्टम में कुछ ख़राबी होती है तो उसमें टाइम लगता है 5-6 दिन तक। फ़िलहाल में इस सोलर पैनल का मदरबोर्ड गया हुआ है इन्वर्टर का, तो वो उसमें टाइम लगता है, दूर से आते हैं। Alirajpur is one of the most backward districts of MP. It was not surprising that there are over 1,500 SAGs in Alirajpur, with every other women affiliated with these SAGs to support their families. The tribals of Alirajpur migrate to the nearby states of Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan looking for employment. In such a situation, the factory and its success is a ray of hope for the tribals of the region. Presently, it is a steady source of employment for the handful of women working here. 7 से 8 घंटे पर डे काम करती है, और एक सप्ताह में 5 से 6 दिन, और उसका मंथली इनकम कुछ 7-8 हज़ार रुपये एक माह के एक महिलाओं को इतना भुगतान करते हैं हम लोग। तो अभी हमने अंकिता कानसिंह और हनुमान एसएजी से जुड़ी हुई सारी महिलाओं से समझा कि किस तरीके से महुआ जो कि लोकली अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक हेरिटेज लिकर
ये महिलाएं बना रही हैं और ये किस तरीके से महिला सशक्तिकरण और इनकी रोज़गार का एक बड़ा साधन उभर के सामने आया है। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप भी इस लोकल हेरिटेज लिकर को जो मध्य प्रदेश का खास है उसको ट्राई करेंगे और अपने ओपिनियन ज़रूर हमें बताएंगे। दिस इज़ इरम फॉर द प्रिंट। थैंक यू।